Hello and welcome to the agenda. I am Ajay Kaul. Today we will discuss about the political fight that has broken out ahead of the first ever District Development Council elections in Jammu and Kashmir. A major political fight has broken out ahead of the first ever District Development Council elections in Jammu and Kashmir, with Union Home Minister Amit Shah calling the People's Alliance for Gupkar declaration as unholy Gupkar gang. He has said the alliance of 7 parties is working against national interests and wants to take Jammu and Kashmir back to the era of terror and turmoil. Leaders of the Gupkar alliance have hit back, saying it is the old tactic of the BJP to project political opponents as imagined enemies. We will discuss this in the agenda today and try to understand what the controversy is all about. We have with us BJP leader Manzoor Ahmed Butt and political analyst Inamun Nabi. But before we begin our discussion, let's have a look at this report. Ahead of the first ever District Development Council elections in Jammu and Kashmir, Union Home Minister Amit Shah has launched a scathing attack on the People's Alliance for Gupkar Declaration, or PAGD, which is a coalition of 7 regional parties including National Conference and People's Democratic Party. He has termed it as an unholy gang and said the alliance, along with Congress, wants to take J&K back to the era of terror and turmoil. Shah alleged that the alliance is working against the national interests and wants foreign forces to intervene in J&K. He asked Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi whether they support such moves. The PAGD was formed last month and its main agenda is restoration of Article 370 and statehood of Jammu and Kashmir. The alliance is jointly contesting the DDC elections, which are scheduled to be held in 8 phases from November 28 to December 19. This is the first electoral exercise in J&K since the special status was abolished and the state was bifurcated into 2 union territories, Jammu and Kashmir Union Territory and Ladakh Union Territory. The Congress last week joined the deliberations on seat sharing within the alliance but maintains that it is not part of it. Former Chief Ministers Mehbooba Mufti and Omar Abdullah, whose parties PDP and NC are parts of the PAGD, reacted sharply to Shah's attack. Mehbooba Mufti tweeted, "Old habits die hard." Earlier, BJP's narrative was that the Tukre gang threatened India's sovereignty, and now they are using Gupkar gang euphemism to project us as anti-nationals. Irony died a million deaths since it's BJP itself that violates the constitution day in and day out. Omar tweeted, "I can understand the frustration behind this attack by the Honorable Home Minister. He had been briefed that the People's Alliance was preparing to boycott elections. This would have allowed the BJP and newly formed King's Party a free run in J&K, which didn't oblige them." The NC leader added, "We are not a gang. Amit Shahji, we are a legitimate political alliance having fought and continuing to fight elections, much to your disappointment." Clearly, the political atmosphere is becoming hot ahead of the electoral exercise. Bureau Report. Now let's welcome our guests. My first question is to Manzoor Butt. Manzoor, why is BJP calling the Gupkar alliance as unholy gang? गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग क्यों बोल रही है? Right. इसका मैं जरूर आपको जवाब देना चाहूंगा कि गुपकार गैंग हम इस वजह से कह रहे हैं कि ये लोग जिनने 70 साल से पास्ट में जम्मू कश्मीर को लूटा है, अब जो यहाँ पर करप्शन एक्ट्स जम्मू कश्मीर में लागू थे, जिससे ये करप्शन करते थे, जम्मू कश्मीर के नौजवान का, जम्मू कश्मीर के आवाम का हक मारते थे, उसको जब 370 के बाद खत्म यहाँ पर कर दिया गया, अब उस करप्शन को से बचने के लिए और लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए इस गैंग की इसका मिलन हुआ है। ये सब मिल चुके हैं
इस वजह से मिल चुके हैं कि जो इन्होंने 70 साल से आवाम को लूटा है, अब उसकी जवाबदेही नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान की है वो इनसे जवाबदेही लेगी। जो इन्होंने पास्ट में इतना यहाँ से जो पैसा सेंटर से आना था वो लूट लिया, अब उसको बचाने के लिए कि उससे कैसे बचेंगे हम, तो ये गुपकार अलायंस बनाया गया और हम उस वजह से इसको गुपकार गैंग बोलते हैं। बट मंजूर साहब, मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी बीजेपी पार्टी अभी 2 साल पहले तक उसी पीडीपी के साथ अलायंस थी गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट थी अलायंस में। उससे पहले भी वाजपेयी गवर्नमेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गुपकार गैंग के अलायंस के मेंबर हैं, वो भी वाजपेयी गवर्नमेंट में थे, आपके अलाय पार्टनर थे। तो आप कह रहे हैं कि 70 सालों से इन्होंने लूटा है, तो तब वो लूटा नहीं था इन लोगों ने? ऐसा हुआ कि जब वाजपेयी जी ने गवर्नमेंट संभाली थी सेंटर में, उनका एक विजन था जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसका नाम था जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत। उन सब चीजों पे उन्होंने यहाँ पर कुछ जो बड़े नेता थे उन दिनों एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किया था कि कश्मीर जिस मुसीबत में पास्ट 1990 से रही, उससे कश्मीरी को कैसे निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं वाजपेयी जी ने मुहिम की थी, लेकिन तब यहाँ पर ऐसी कोई मतलब कुछ ऐसी कोई स्पॉन्सर्ड पार्टी नहीं थी कि जिसके साथ बातचीत की जा सकती थी। तब यही लोग थे जो यहाँ पर सत्ताधारी थे 70 सालों से। यही प्रोसेस फिर चला जिसमें मुजफ्फराबाद रास्ता खोला गया, यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क यहाँ पर लाया गया। मेरा सवाल मंजूर ये है कि मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा। तब ये लोग एंटी नेशनल थे या नहीं थे? जब आप पीडीपी के साथ अलायंस में थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तब ये एंटी नेशनल थे या नहीं थे? देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सबसे बड़ा ये है कि इलेक्शन के बाद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते, जो मैंडेट होते हैं लोगों की तरफ से, उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो तब बदकिस्मती से हमें जम्मू में मैंडेट मिला और पीडीपी को कश्मीर में मिला था। तब भी वही जो वाजपेयी जी की पॉलिसी थी और मुफ्ती साहब ने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसी को आगे बढ़ाया था। तब हमने कोशिश की थी कि शायद जो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इससे कश्मीरी जो परेशान था, जो यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, वो होनी चाहिए। तो हमने इनके साथ अलायंस किया। लेकिन जब पीडीपी उस पर खड़ी नहीं उतरी और वही करप्शन, बैकडोर एंट्रीज, वही एंटी यूथ स्टेटमेंट आना, फिर हमने वो कोलेशन ब्रेक की, जिसकी वजह से 3 साल जो सरकार हमारी चली, हमने उसको ब्रेक किया। Okay, let me go to Inam Nabi. Inam, you heard what Manzoor Ahmed Butt said. Do you agree with his views? Absolutely not. I don't agree what BJP spokesperson has right now stated. Let me tell you very clear, very important thing, that I don't subscribe the ideology and the way Gupkar alliance is going on, or they are pursuing it, because the best platform to safeguard the Article 370 was Parliament, and our 5 Parliament members from Kashmir province, especially J&K, remained mum in the Parliament, and now they are crying in the street. Number one. Number second, I don't subscribe their ideology. But calling them gang, I don't agree with that thing also, because in democracy, you cannot call the dissent. I don't agree with Gupkar alliance, but I cannot call them gang. In democracy, it is a dissent, always dissent. But calling them gang as criminals, I think they are those who are calling them criminals and gangs. They are somewhere raising their fingers towards them also. Because in NDA they had the alliance with the National Conference. In NDA2 they had the alliance with BJP as well. With PDP as well. So now, as far as let me complete. Yeah, carry on. Now, as far as Manzoor Sahib's point is concerned, that they were involved in the corruption cases. If they were involved in the corruption cases, they had been the partners in the coalition. They were the coalition partners in PDP BJP government. If they have done any corruption, so they are also partners in the corruption. Now, coming to the second point, when they started election campaign in Jammu, and when they addressed the rally, they addressed the Jammutis in Jammu. They said, बाप बेटी की सरकार से हम आपको नजात दिलाएंगे, बाप बेटी की सरकार से नजात दिलाएंगे। बाद में क्या हुआ? By taking the excuse of the mandate, fractured mandate, they formed the government only with बाप बेटी। फिर हमने बाप बेटी को भी नहीं देखा, हमने बाप बेटी, भाई, ताया जी, पाया जी, मामा जी, सभी चाचाओं को देखा इनके साथ हुकूमत करते हुए। Then they were not having any problem. Now when they are out of the power,
both the parties in the state, they are trying hue and cry. I don't agree with any single word of the with my friend from the BJP. Now, as far as their corruption charges are concerned, while they are in the power in the center, now it is a union territory. Every control, there is a control from New Delhi. Why they are not being arrested? Who is stopping them from arresting those who have been involved in the criminal activities of the corruption? Who is stopping them? Okay, Inam, I want to ask you also, as Amit Shah says that these people, Gupkar Alliance leaders or this grouping is anti-national, they are working against the national interest. Do you agree with that? Not at all. So personally saying this 370 has been given to Kashmir, Jammu and Kashmir people by the Constitution of India. If I am demanding its restoration, so I am not demanding anything out of the Constitution. So if I am demanding it, I seek anything, any privilege which anybody in the country can seek. For example, we have 11 other states in the country who are having a special status. If tomorrow their special status will be abrogated and they will also seek a special status, will you call them, will 11 states will be the anti-national? No, So I don't agree with what this Amit, by calling them. no, Inam, what Amit Shah was trying to say was, he was referring to Farooq Abdullah's statement when he said that China should interfere for the restoration of Sir, 370. tell me one thing. Omar Abdullah was foreign minister of the BJP government. Omar Abdullah had been the minister, industries and commerce minister with the BJP government. So how they were separate then and anti-nationals now? Okay, let me ask now, मंजूर, तो ये जो आप रेफर करते हैं, जैसे अभी इनाम ने भी बोला कि यही लोग आपके साथ थे और इन लोगों ने आपका झंडा उठाया था, अभी आप इनको बोल रहे हैं कि एंटी नेशनल है। सपोज आप फारूक अब्दुल्ला की बात करें कि चाइना पे साथ की बात होती, हम जम्मू तब जो JNK भारतीय जनता पार्टी थी, जिनको जम्मू से मैंडेट 25 सीटें मिली थी, हम कोलेशन ब्रेक नहीं करते। अगर हमें सत्ता की वोट होती, अगर हमें पावर की जरूरत होती तो हम वो 3 साल जाया नहीं होने देते। मैं आज कह रहा हूँ कि आज हम इसलिए इंटरनेशनल इनको कहते हैं कि आप देखिए किस तरीके से जो गुपकार अलायंस से स्टेटमेंट निकलते हैं। क्या गुपकार अलायंस को अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक्सेप्ट किया है, क्या हमें ये कहना चाहिए कि चाइना आएगा अब वो मदद करेगा? दूसरी तरफ से PDP कहता है कि आप पाकिस्तान को इंटरफेयर करना चाहिए। अगर ये इंटरनेशनल इसको नहीं कहेंगे तो क्या बताएंगे हम? आज गुपकार गैंग जो मिली है, ये जस्ट कि जो हमारा इनका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान और चाइना में रहा है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? उस वजह से हम इनको इंटरनेशनल कहते हैं। और बीजेपी वाहिद एक पार्टी है जिसने कसम खाई है जो जम्मू कश्मीर में लूट खसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की तरफ से की गई है, उसको लोगों तक लाएंगे और उसका भरपूर हिसाब लिया जाएगा। सो इनाम, एज ही वाज रेफरिंग टू, ये जो कह रहे थे कि जैसे महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि ये झंडा नहीं उठाओगे, तिरंगा नहीं उठाओगे एंड ऑल दैट। यहाँ पर इनामुल नबी को मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये गुपकार अलायंस के स्पोक्सपर्सन है क्या? अगर ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनको तो बराबर बात करनी चाहिए। इनको 370 सबसे बड़ा बैरिकेड था जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, उस पर भी एनालिस्ट करना चाहिए कि 370 के बाद जो एक ट्रांसपेरेंसी थी। मेरे बीजेपी लीडर ने शायद मेरी अंग्रेजी नहीं सुनी। मैंने पहले का आई डोंट सब्सक्राइब the ideology and the way they have been doing it। फिर आपको जो आपको वो चीजें भी मेरी बात सुनिए। अगर आपने मेरा कल ट्वीट पढ़ा जो काफी सारी नेशनल टीवी चैनल ने उसको शो भी किया, मैंने आई हैव एक्सपोज्ड गुपकार अलायंस। मंजूर इनाम को बोलने दो, मंजूर इनाम को बोलने दो। लेट मी कंप्लीट। अगर आपने कल देखा होगा, न्यूज चैनल्स ने भी चलाया मेरा ट्वीट को। आई वाज द फर्स्ट पर्सन कल से जिन्होंने उनको प्रैक्टिकली एक्सपोज करना शुरू कर दिया। मैंने एक रिटर्निंग ऑफिसर का पेपर शो किया जहां ये कह रहे थे कि हम ग्रैंड अलायंस होकर इकट्ठे लड़ेंगे। वहां मैंने उनको स्टेटमेंट दिखाया RO1 का रिटर्निंग ऑफिसर का, जहां पर ये इंडिविजुअली लड़ रहे हो, आपके नाम से लड़ रहे। मैं तो इनको एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि अगर गुपकार अलायंस है तो यहाँ तो सारे अलग अलग लड़ रहे। मैंने इसलिए पहले कहा दे आर फॉर पीपल। They have cheated people from 1942 until they had been the power। अगर दिल्ली से ज्यादा अगर गिला शिकवा किसी से है वो रीजनल पार्टी से है। उन्होंने लोगों को धोखे में रखा। उन्होंने कहा था कि 370 परमानेंट है और एक्सेशन
टेम्परेरी है, यहाँ तो कुछ और ही निकला है, यहाँ 370 ही आरटी तो निकला, टेम्परेरी निकला। उनकी सरकार ने 70 साल तक उन्होंने इस आईन के इस हिस्से को परमानेंट नहीं कर सके। उनके पास भी तो फुल मेजॉरिटी हुआ करती थी, उन्होंने आज तक उसको परमानेंट नहीं किया। एनसी वालों ने अगर इसको 370 को किसी ने खोखला किया, वो तो एनसी रही है। अगर कोई बची कुछ कसर थी वो पीडीपी ने पूरा कर दी। मैं तो बार बार उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, बीइंग एज अ बिलीवर ऑफ द डेमोक्रेसी, मैंने कहा डिसेंट को हम एंटी नेशनल करार नहीं दे सकते हैं। रही बात चाइना, पाकिस्तान और बाकियों की, चाइना की बात कर रहे हैं, किस तरह कांग्रेस वहां पर कुछ और इशू कर रहे हैं अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए, इसी तरह इनको पता है कि किस तरह रेलेवेंट रहना है, उन्होंने चाइना का नाम लिया अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, इसको आप एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद चाइना को क्यों इंटरफेयर करना? पाकिस्तान आईएसआई की वो चीजें, स्टेटमेंटों को यहाँ पर प्रमोट करने से गुपकार अलायंस को क्या हम कह सकते हैं? आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि गुपकार अलायंस हमारे नेशन के इंटरेस्ट में है? कल भी अमित शाह जी का बयान आया, आपने खुद देखा कि जो ट्वीट किया गया उसमें साफ लफ्जों में जो अभी गुपकार गैंग में चीजें हो रही है वो तो हमारे देश के खिलाफ है, और जिसको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और देश का कोई भी नागरिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जनाब, देश के खिलाफ है तो बंद कर दीजिए ना। किसको? मेरे पास तो पुलिस नहीं है, मेरे पास एजेंसी, मेरे कंट्रोल में एजेंसीज नहीं है, बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है इंटरनेशनल में, लेट यू प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मंजूर इनाम इंटरनेशनल कुछ तो प्रैक्टिकली कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले एंटी नेशनल है या नेशनलिस्ट है। करेक्ट। मंजूर ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, अगर कोई एंटी नेशनल है तो उनको अरेस्ट करके बंद कर दीजिए, क्यों नहीं करते फिर? सर, सरकार वो सिक्योरिटी एजेंसी और बाकी दीगरों का कहना, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है जो देश को अभी अच्छे विकास की राह पे चला रहे हैं। हमारा काम किसी को बंद करना नहीं, लेकिन सरकार तो इनकी है, पिछली बार भी इसी सरकार इनकी है। ये बहानाबाजी छोड़ दीजिए, करप्शन चार्जेस है उनके खिलाफ तो केसेस कर दीजिए, बंद कर दीजिए। एंटी नेशनल है एजेंसीज आपके पास से, बंद कर दीजिए। मंजूर बताइए, जवाब दीजिए इसका। इनाम साहब, हम बार बार यहाँ से गुहार लगा रहे हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज है कि जो ये गुपकार अलायंस है वहां पर इस पे नजर रखनी चाहिए कि जो अभी स्टेटमेंट जो पाकिस्तान से इशारे दिए, कब तक नहीं नजर रखना? फिर कब तक आप नजर रखेंगे? इलेक्शन भी खत्म हो रहे हैं, यहाँ से खुद कह रहे हैं कि इनकी एक्टिविटीज एंटी नेशनल है, यहाँ से आप कह रहे हैं आप नजर रखे हुए हैं। मेरी बात सुनिए जनाब, मेरी बात सुनिए। अगर आपके खिलाफ 70 वर्षों से इनके खिलाफ करप्शन चार्जेस है, आज तक नहीं दे रही, क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई ठोस एक्शन ले रही है? वो मुझे बताइए ना। आपके पास काफी, आपके भी नॉलेज में है, हमारे नॉलेज में है, बड़े बड़े करप्शन केसेस हैं, बड़े करप्शन केसेस, हम उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं देख रहे। मेरी बात सुनिए इनाम साहब, जो ईडी डिपार्टमेंट ने हाल ही में फारूक अब्दुल्ला साहब को वहाँ ऑफिस बुला के उनको क्वेश्चनिंग चल रही है, वो जो केस पिछले इतने वक्त से अब दब गया था उसको तो हमने उठाया ना, हमारी सरकार ने उसको उछाला, अभी वो इंक्वायरी चल रही है। अगर उनसे साबित होता है तो जरूर ही मैं भी अपील करूंगा कि उनके साथ भी वही सलूक किया जाना चाहिए जो एक मुजरिम के साथ होता है। नहीं, फारूक नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है। मंजूर, फारूक साहब का जो केस चल रहा है वो तो करप्शन रिलेटेड है, लेकिन जो इनाम कह रहे हैं कि अगर वो एंटी नेशनल है तो उनको बंद कर लीजिए, उनके खिलाफ केस करके बंद कर दीजिए, अरेस्ट क्यों नहीं करते? सर, मैंने इसी प्रोग्राम में पीडीपी के स्पोक्स पर्सन थे, मैंने तब भी कहा था, आज भी अपने गृह मंत्री और अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से गुहार लगा रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके इस पे कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे मुझे लगता है कि ये एक नया अनरेस्ट करने की कोशिश में है। महबूबा मुफ्ती साहिबा भी और हमारे फारूक अरेस्ट क्या कर सकते हैं? वो उनके साथ कौन है यहाँ पर? आपको कुछ भी पता है क्या वो बंद रहे? उनके अपने वर्कर वो कश्मीरी लोग काफी ज़हीन हैं। कश्मीरी लोगों को ना आपकी ना मेरी नसीहत की जरूरत है, उनको पता है कौन क्या है, उनको पता है कि 370 खोखला करने में अब्दुल्ला और मुफ्ती का कितना रोल रहा है। आज महबूबा मुफ्ती कह रही है झंडा। मुझे याद है जब मुफ्ती साहब, मरहूम मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब उनकी सरकार ने आपके साथ मिलकर एक सर्कुलर निकाला था कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग पर कश्मीरी फ्लैग लहराया करेगा। 24 घंटे के बाद ही उन्होंने वो ऑर्डर वापस लिया। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, यहाँ पर 6 जून को कश्मीर डे मनाया जाता था झंडा लहराने के लिए। एनसी और पीडीपी ने हमेशा उस डे को रिजेक्ट किया था, वो कभी परमिशन नहीं देते थे। तो ये चीजें लोग जानते हैं जनाब, वो कोई एड्रेस नहीं करेंगे।
आप ये कहिए कि उनके खिलाफ जो करप्शन चार्जेस है, उनके खिलाफ जो एलिगेशन है, उनकी जांच कब जवाब देंगे? उसका जम्मू कश्मीर की अवाम ही अब इनको जवाब इस गुपकार अलायंस को मैं वही कह रहा हूँ तो जवाब देना है। देखेंगे इनको। अच्छा मंजूर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गुपकार अलायंस वाले लीडर हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है कि हम 7 पार्टियां साथ आई हैं, यूनाइटेड अपोजिशन है, इसलिए बीजेपी ये डरी हुई है और इसीलिए ये सब बोल रही है कि एंटी नेशनल है एंड ऑल दैट। नहीं सर बीजेपी क्या इसमें डरेगी कि कोई तिरंगा हाथ में नहीं लेगी महबूबा मुफ्ती साहिबा? जब तक जम्मू कश्मीर का जो झंडा कोई होता था उसको वापस नहीं लाएंगे क्या? वहां पर बीजेपी डरी है जब उसने उस पर चिल्लाया कि तिरंगा क्यों नहीं लेगी महबूबा मुफ्ती? हम डरे नहीं है, डरे ये लोग हैं क्योंकि जो करप्शन इन्होंने किया है पास्ट में उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि अब उसका हिसाब किताब होगा। मौजूदा बैठने वाले के लिए ये पीडीपी के खिलाफ इनाम लेट अस नॉट गो फॉर लेम एक्सक्यूजेस जनाब। आपके पास सरकार है, आपके पास इख्तिदार है, आपके पास पावर है, आपके पास क्या नहीं है? अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने कोई करप्शन किया है, मुझे एक पीडीपी लीडर का नाम बता दीजिए जिसको आपने करप्शन केस में बंद किया हो अभी तक। अच्छा इनाम सब आपको अभी पता होगा, लगभग 83 जो ऑफिशियल्स है, अभी मेरे पास न्यूज आई 83 ऑफिशियल्स से करप्शन चार्ज जिन्होंने पास्ट में करप्शन किया है उसको आज जो मैं पीडीपी की बात कर रहा हूँ, मैं पीडीपी की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, ये चीजें धीरे धीरे हो रही है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कहा आने वाले 1 साल में आप देखेंगे जिसने कश्मीर का पैसा खाया, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। गुपकार गैंग की अब लोग ही इनको नकारेंगे। इनाम आप लोगों ने आज सर अजय जी मैं एक बात आपको जरूरी बता दूंगा। जी पूछ के एब्रोगेशन के बाद जो यहाँ पर डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ उसमें तो बीजेपी वाले और एमसी का इत्तेहाद था, तभी तो एमसी का बंदा वहाँ डिप्टी मेयर बैठा हुआ है। जी ये देखिए हमारे उसमें टोटल नंबर चेक कर लीजिए, कोई बात मेयर बनाने के लिए दोबारा ये की जरूरत होती है, तो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। मेयर चाहे वो एमसी का है किसी और का है, लेकिन बीजेपी के 7 कॉर्पोरेटर है, 7 कॉर्पोरेटर से हम उनके साथ ना अलायंस कर सकते हैं और ना ही अपना मेयर बना सकते हैं। ये गलत है, आपको कंफ्यूजन। अच्छा इनाम, एक चीज़ आपसे पूछना, जैसे मैंने उनको पूछा मंजूर को कि एक कहा जाता है कि अमित शाह जी ने ये सब बोला इसलिए क्योंकि बीजेपी डरी हुई है कि 7 पार्टियां साथ आई है, यूनाइटेड अपोजिशन है, तो ये क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, मुझे नहीं लगता ये कोई थ्रेट है, क्योंकि ये जो अलायंस है ये विदिन 4 वॉल्स ऑफ द गुपकार अलायंस। प्रैक्टिकली मैंने जो अभी आपसे बात शेयर किया और आप मेरा डिबेट देख सकते हैं, मैंने वो दिखाया हुआ है कि ये लोग अगर कहीं पर किसी जगह पर कोई पार्टी का डिसाइड हुआ है वहां वो बाकी पार्टी से अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है। ये बस खोखलाबाजी, अपने आप को रेलिवेंट और अपने आप को खबर में रखने के लिए बना रहे। अब इनको तोड़ पकड़ता जा रहा है, उनकी ये सारी कोशिश कामयाब हो रही है जब नई दिल्ली से इनको लिस्ट लेना शुरू होता है। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इनका कोई चांस नहीं है इलेक्शन में कर रहे हैं गुपकार वालों का? क्या कोई नहीं है, ये 2 ही पार्टी है, अब्दुल्ला पार्टी है और ये मुफ्ती पार्टी है। बाकी जो यहाँ पार्टी जिन्होंने दिखाई है वो किसी चुनी, उनका एक विधायक नहीं अभी तक असेंबली में आया है। अब वो पार्टियां मिल गई। अब इसमें गुपकार अलायंस में एक बंदा ऐसा भी है जिसने आज तक अपना म्युनिसिपल वार्ड नहीं जीता है, चीफ ऑफ ए मेंबर। सो इनाम, क्या लगता है कि इनका कोई चांस नहीं है इलेक्शंस में गुपकार वालों का? नहीं, मुझे नहीं लगता लोग इन पर भरोसा करेंगे, मुझे नहीं लगता लोग इन पर भरोसा करेंगे। दे स्टैंड एक्सपोज्ड बिफोर द पीपल। हमारे लोगों की, आम लोगों की बात छोड़िए, जो इनके अपने वर्कर्स हैं उनको भी तसल्ली हुई है इन पार्टियों की। जब वो एब्रोगेशन के बाद अरेस्ट हुए थे, एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस के बाद अरेस्ट हुए थे, उनके अपने वर्कर में से कोई बाहर नहीं निकला उनके हक। तो आपको क्या लगता है बीजेपी का चांस है? बीजेपी चांस नहीं, यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत है। बीजेपी को जम्मू में खुद खतरा है, जहाँ से उन्होंने इतनी थम्बिंग मेजोरिटी ली है। जम्मू में उनका खतरा है, जम्मू में उनके लोग नाराज थे, तो कश्मीर की बात ही नहीं। क्यों नाराज क्यों है? विकास कहीं है ही नहीं। विकास जो नारा उनको दिया गया था, विकास का कोई है ही नहीं। आपके ही प्रोग्राम में मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के 2 बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस किए प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद, उनमें 0 प्रोग्रेस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो प्रोग्राम खुद प्राइम मिनिस्टर
साहब ने अनाउंस किया हो उसमें 0 प्रोग्रेस है, तो बाकी प्रोजेक्टों की क्या हालत होगी, ऐसे में कौन से विकास के लिए वो वोट देंगे। ओके चलिए, इलेक्शन तो अभी हफ्ते भर में है, सो हफ्ता 10 दिन में है, तो विल सी कि व्हाट इज द रिजल्ट लाइक दैट. This is all in the agenda today. Thanks for watching. I'll be back with another important topic tomorrow. Till then, goodbye.